Assalamualaikum my dear little buddies, how are you all? I hope कि आप बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं और अपनी छुट्टियाँ स्पेंड कर रहे हैं. So as you all know, we are on chapter number 2, 5 bells, and today we are going to deal with comprehension, which is on page number 27. There are some questions, you have to answer them. Then there is a task of translation. You just have to translate the following of the few sentences of English into Urdu. And the rest of the task is regarding word sentences. There will be 5 words. You have to make sentences of the words by your own. Okay, so let's start. Okay, so it's page number 27. Learn to read number 1. ठीक है, तो इसके अंदर 1, 2, 3 and 5 जो questions हैं. You just have to write and answer these questions on your notebook. Write date and day, topic name, chapter name, and write comprehension on above. And after that you have to write question number 1, question number 2, question number 3 and question number 5. We are not going to do question number 4 on our notebooks, but we will do it on the books. ठीक है, it is our next task. ये हमारा next task होगा, तो हम लोग question answer से deal कर लेंगे. Then we have to do this true or false activity. So first question is that how did Ryan's mother sense that something was wrong? Second question is why did Ryan's parents want to buy him something? Third question is what was the main reason for the 3 people missing one another in the store? Okay, and fifth question is what does the story tell you about David family? What words do you use to describe them? Okay, dear students, these are very interesting questions. जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से जो स्टोरी है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है ना, उनको पता चल गया कि कौन से कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी में हो क्या रहा है. दे कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चन. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है. इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर योर हेल्प. You can ask me, but first of all you just have to do your own efforts. Okay, my little fairies and the boys, just hear me very carefully. That on this slide I just wrote some clues and hints for your answers. मतलब आपने जहाँ पे ये जो लिखे हुए मैंने hints लिखे हुए, ये answers नहीं हैं, ये just clues हैं कि आप इन words को use करके हुए अपना answer लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है. एंड इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ डिड रयान्स मदर सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. रयान की मामा को किस तरह पता चला कि रयान के साथ कोई मसला है. अब मैंने हिंट्स के अंदर लिखा है रयान्स हेडेक, हैंड ऑन हिज हेड. ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स हैं कि हमें पता चल रहा था कि रयान के सर में दर्द था और वो अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था. दैट्स वाई उसकी मामा को पता चला कि इसके साथ कोई गड़बड़ है. ठीक है, इन द सेकेंड क्वेश्चन वाई डिड रयान्स पेरेंट वांट टू बाय हिम समथिंग. रयान के पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगा कि हमें उसे कुछ लेके देना चाहिए. एज वी ऑल नो दैट बाईसाइकिल ऑफ रयान वाज नॉट, द बेल ऑफ द बाईसाइकिल वाज नॉट वर्किंग वेल एंड फॉर ड्यू टू दिस रयान वाज वेरी मच अपसेट. तो आप इन क्लूज को यूज़ करते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द 3 पीपल मिसिंग वन अनदर इन द स्टोर. अब 3 लोग एक ही स्टोर पे जाके रयान के लिए बेल लेते हैं, लेकिन वो आपस में मीटअप नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते. क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि शॉप्स के अंदर 2 डोर्स थे. एक मार्केट डोर था, एक स्ट्रीट डोर था. ठीक है, तो एक से अंदर आ सकते थे, दूसरे से बाहर जा सकते थे. तो यू जस्ट हैव टू यूज़ such kind of words to answer your questions in a perfect way. And similarly question number 5 is regarding what does the story tell you about the David family. What word do you use to describe them. अब आपने डेविड की फैमिली को पढ़ा है कि how much caring they were regarding रयान and how much concerned they were regarding their child. और उसकी जो बहन है वो भी कितनी caring और loving है, उसके पेरेंट्स कितने supportive हैं. So you just have to use some such words which I had just given you here. And you have to just give the answer in a very accurate way. Okay, if you feel any problem then you have to ask me. Okay, my little children, so let's move to word sentences. It is the most interesting part whenever we are dealing with any kind of chapter of English. So जो words meaning और word sentences होते हैं, they are essential part. इनको करने से आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता चलती हैं कि आप एक वर्ड को किस तरीके से कितना अच्छा डील कर सकते हैं while making the sentences. ठीक है, so here are 5 words. फर्स्ट 2 वर्ड्स के प्रेजेंट के और बाईसाइकिल के जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने बनाए हैं, 2 बनाए हैं.
But if you are able to make very good sentences in mind, then you have a very free hand to make sentences by your own. तो प्रेजेंट का मैंने बनाया था, माई फ्रेंड गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट. एज यू नो प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट, और आई गोट अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स ऑन माई बर्थडे. सिमिलरली और फॉर बाईसाइकिल, एवरी वन ऑफ माई चिल्ड्रन हैव अ बाईसाइकिल. आप सबके पास भी बाईसाइकिल होगी, बट योर टीचर डोंट हैव इट, डजंट हैव इट. तो बाईसाइकिल में आप लिखें रयान बाईसाइकिल लॉस्ट ब्रेक. रयान की बाईसाइकिल की ब्रेक्स फेल हो गई थी, या उसकी बेल सही काम नहीं कर रही थी. वट एवर यू वांट टू मेक, यू कैन मेक द सेंटेंसेस विद इन द चैप्टर. ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर. एंड माई फादर गिफ्टेड मी अ बिग बाईसाइकिल. यू कैन राइट एवरी सेंटेंस, पॉसिबल सेंटेंस, जो कि बहुत सिंपल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना. ठीक है, तो बाकी जो 3 वर्ड्स हैं, एक्सपेंसिव, बेटर एंड लाफिंग, इनके सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे. बट इफ़ यू वांट टू मेक ऑल ऑफ द सेंटेंसेस बाय योर ओन, देन गो अहेड. ओके, सो द लास्ट पार्ट इज ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब होता है तब्दील करना. ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना, किसी एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ बयान करना. ठीक है, अब जैसे मैं इंग्लिश का आपको जब रीडिंग करवाती हूँ, तो इंग्लिश के पैराग्राफ को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करती हूँ, ऐसे ही है. तो यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया है, आपने इसको पढ़ना है. ठीक है, और आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ. एट 10:30 Ryan's father was in the shop buying his son a new bell. Just as he went out of the Market Street door, Pepita entered through the Bank Street door. Good morning, she said to assistant. I want a cycle bell, please. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक पैराग्राफ. अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में. तो लिखा हुआ है जी इसकी ट्रांसलेशन में, 10:30 बजे रयान के अब्बू दुकान में दाखिल हुए और अपने बेटे के लिए एक घंटी खरीदी. जैसे ही वो अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकले, पेपिटा मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई. ठीक है, ये जो दरवाज़ों के नाम हैं, ये आपने उर्दू के हिसाब से इसी तरह आएंगे कि मार्केट स्ट्रीट डोर आप अंदरूनी कह सकते हैं, बैंक स्ट्रीट डोर आप मरकज़ी कह सकते हैं, कि एक दरवाज़ा अंदर आने के लिए और दूसरा बाहर जाने के लिए. ठीक है, तो यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ वर्ड्स इन द ट्रांसलेशन. और अभी भी आपको किसी और पैराग्राफ में भी कोई मसला हो जिसकी आपको ट्रांसलेशन नहीं समझ आ रही, then you have to ask me, I will help you out. Okay, okay my dear students, so we are done with today's lecture. और आई होप कि इतनी कोई मुश्किल टास्क नहीं है हमारे लिए आज का. सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर्स हैं, यू जस्ट हैव टू राइट देम बाय योर ओन. क्योंकि आपको पता है कि कभी भी हम लोग डिक्टेट नहीं करवाते. You just have to use your own concept, you have to use your own vocabulary, you have to use your own words to answer your question. ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि आपकी एबिलिटीज़ को शो करेगा. और अल्हम्दुलिल्लाह आई नो ऑल ऑफ़ यू आर वेरी वेल डन, इंटेलेक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग. आप सब बहुत अच्छा सा लिखेंगे. एंड आई विल अप्रिशिएट यू इफ़ यू गिव योर आंसर्स इन अ वेरी गुड वे. So very good luck to all of you. Take care of yourself. Allah Hafiz.